Good morning, students. Today we will study the first chapter of geography, which is resource and development. These are the notes from the NCERT books, so try writing them in your own handwriting. So it will be easy for you to learn them and do a quick revision before board examination. Now the chapter is resource and development. Now the very first question is, what is a resource? Now the answer of this question is everything which is available in the environment. Like I have already written the keywords, so similarly you also write the keywords and try to learn in the same manner. Now resource is everything which is available in our environment, but that everything should fulfill the human needs. Then only it will be known as what? It will be known as a resource. Now everything which is available in the environment and it will satisfy human needs, but if it satisfies human need, besides this it should fulfill three more things. That is, it should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Now these three things, that means what? The technology should be there to extract that particular resource or to transform something into resource, otherwise it will not be called as a resource. Now second one is, should be economically feasible. Feasible means practical. That means economically, that means should be monetary practical. If you are extracting something and it requires an investment of, suppose take an example, it requires an investment of 40 rupees, and after selling it if you are getting only 38 rupees, this is not economically practical. Okay, now next one is culturally acceptable. It should be accepted by all, then only it will be known as a resource. Now revise the definition. What is a resource? Resource is everything which is available in the environment. It will fulfill the human needs, and it should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Now this is the combined, or you can say this is the combo definition of resource, and if you will write all these keywords in the board examination, you will get full marks. Now next one is, now next topic in NCERT is the interdependency of or interdependent relationship between nature, technology, and the institution. Now the very first thing which you should know that, or which we all know, that human itself is a resource. Okay, because human is the one who transforms things into resource. It makes them useful. So now he himself is a resource. Now human uses technology so that it can transform things from environment and make them into resource. For example, if human, for example, wind is a physical environment, he takes it from there. Human interacts with wind with the help of technology, which is windmills, and converts it into electricity. Now he also develops institutions so that it helps him for his own economic development. So now the relationship between nature, technology, and institutions. What does institutes help him? He uses these institutes to develop himself economically. Now the next one is classification of resources. Now this is very important topic from board examination point of view. Whenever you classify something, it has a base. Whenever you say something is good or something is bad, it is based on some basis. Like if he is good, he is based on, you're saying he is good. Why he is good? Because he is good in sports, he is good in studies, his character is very good, his nature is very good, he is very helpful. These are the bases when you classify someone. So similarly, when you classify resources, there are some bases, like on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. Now we will first study on the basis of origin. Origin, this we all are studying since our childhood, I guess. I mean, since from our class 3rd or 4th. So origin is, on the basis of origin, resources are of two types. First one is biotic and the second one is abiotic. Bio means having life, as you have heard of biology. Bio means life, logy means study. So biology is study of living beings, like you study their animals and plants. And similarly, biotic resources are those which are obtained from biosphere. You can see here also bio means life. Okay, biosphere is a combination of three spheres, which is lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, and have life. So these all are what? These are biotic resources. Examples, flora and fauna.
Now next one is abiotic. When you add a to the bio, that means absence of bio, that means absence of life. That means non-living components will come under this. Example, rocks and metals. Now next one is on the basis of exhaustibility. Exhaustibility का मतलब क्या होता है? Like किसी चीज़ का खत्म हो जाना, ठीक है. On the basis of exhaustibility, there are two types of resources. फर्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. अब रिन्यू करने का प्रोसेस होगा, देयर विल बी अ वे टू रिन्यू समथिंग. इट कैन बी फिजिकली रिन्यूड, इट कैन बी केमिकली रिन्यूड, और इट कैन बी रिन्यूड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, बट यू कैन रिन्यू इट. ठीक है. तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सोलर, विंड एंड वाटर. एंड फर्दर वी कैन डिवाइड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनटू two, as in NCERT only in one line it is written that renewable resources can be classified into continuous or flow. Here is the chart. Renewable resources can be classified into continuous or flow. A second one is biological. Now renew, which can be renewed, ठीक है ना. It will take a process either mechanical or physical or chemical, but it can be renewed. Now the example of continuous or flow is stock is continuous and are being used since time immemorial. That means जब से अर्थ एग्जिस्ट कर रही है तब से ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनका जो स्टॉक है इट इज़ कंटिन्यूस, ये कभी ख़त्म नहीं होता. तो एग्जाम्पल क्या हो गया? विंड इज़ देयर, सनलाइट इज़ देयर, इनका स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता. दीज आर कंटिन्यूस इन स्टॉक. फ्लो जो है इनका इट इज़ कंटिन्यूस. द सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल. अब ये कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फौना. ठीक है ना. यू कैन से फ्लोरा एंड फौना हम बोल सकते हैं इसको. ठीक है. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते. लाइक इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन इट्स फॉर्मेशन. इसको बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो आप इसको एकदम से रिन्यू नहीं कर सकते. जब बनने में इतना टाइम लग रहा है तो आप इसको रिन्यू कैसे करेंगे? तो अब इसके भी दो टाइप होते हैं, लाइक रिसाइकिल एंड नॉन रिसाइकिल. जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं वापस से, और जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप इस्तेमाल ऐसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं वापस से जो कि एक बार यूज़ करने में ही क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. ठीक है. अब जिसको आप रिसाइकिल करते हैं, दीज आर मेटल्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ आयरन रॉड और समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन. आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने उसको 5-10 साल के लिए इस्तेमाल किया. आप उसको वापस क्या कर सकते हैं, फर्नेस में डाल के मेल्ट करके उसको उसकी क्वालिटी जो होगी वो थोड़ा डिग्रेड हो जाएगी, बट यू कैन रिसाइकल इट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन रिसाइकलेबल. दैट मीन्स व्हाट? लाइक फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल एक बार कन्वर्ट हो गया कोल में और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया. ना दैट वन इज एग्जॉस्टेड, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है. तो ये कैसे रिसोर्सेज हो गए? दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब कौन उसको पोजेस कर रहा है, तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा. तो इसे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. नंबर 1 इज इंडिविजुअल. ठीक है. कोई भी प्राइवेटली अगर ओन कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबके पास घर हैं और हमने प्लॉट पे बनाया हुआ है, तो हमारा खुद का प्लॉट है, तो दीज आर व्हाट? दीज आर प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज. ठीक है. मेरी कार है, दैट कार मेरी, अगर मैंने खुद का पोजेशन है मेरा, तो वो क्या हो गया, दैट इज माई प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. कम्युनिटी ओन्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल विल ओन दैट. और जो उसका एक्सेस होगा इट विल बी टू द ऑल पीपल. जैसे एग्जाम्पल हो गया, आपकी कॉलोनी में कोई एक मंदिर है, आप सभी वहाँ जाते हैं. ठीक है. आपका पार्क होगा उस कॉलोनी में, आप सभी वहाँ जाकर खेलते हैं. दैट पब्लिक पार्क इज व्हाट? दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल द कम्युनिटी members. Now next one is national resources. Technically when you read national resources, everything is a national resource. All which is available that belongs to nation. अब ऐसा क्यों कहा मैंने कि वो नेशन को बिलोंग करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है और उसके आसपास कई इंडिविजुअल लोगों के प्लॉट्स थे, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर लेती है, उसको ले लेती है बाय गिविंग सम अमाउंट ऑब्वियसली, बट वो क्या किसका रिसोर्स है? वो नेशन का रिसोर्स है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स. अब लैंड में तो जो है किसी न किसी का पोजेशन है. ठीक है. उसको यूजली हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, बट इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होंगे जिसमें किसी नेशन का ओनरशिप ना हो. अब वो क्या है? वो बियॉन्ड, स्पेसिफिकली इसके लिए जो एग्जाम्पल होता है वो है ओशंस एंड सीज. अब होता क्या, इधर देखो, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. आपको सबको पता है कि इंडिया जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. फ्रॉम ईस्ट साइड इज बे ऑफ बंगाल, ऑन वेस्ट इट इज
अरेबियन सी, ऑन साउथ साइड में क्या है, इंडियन ओशन है। तो सीज को लेके एक रूल बना हुआ है। थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस में लॉ ऑफ सी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए थे। उसमें ये क्लियर किया गया था कि जो समुद्र है अगर वो किसी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक है तो वो उसकी EEZ में आता है। दैट मीन्स व्हाट, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उस 200 किलोमीटर में वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकता है, लाइक वो उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकता है, वहाँ पे फिशिंग कर सकता है। ऐसे और भी, जैसे ये 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, 12 नॉटिकल माइल्स विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 9.2 किलोमीटर्स, ठीक है ना। ये उसके खुद के टेरिटोरियल वाटर में आता है। और 200 तक क्या, कौन सी उसका एरिया होता है, दैट इज EEZ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि बियॉन्ड EEZ मतलब इस एरिया, इस 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 370 किलोमीटर्स, इसके बियॉन्ड जो एरिया आएगा दैट विल बी काउंटेड एज इंटरनेशनल रिसोर्स, क्योंकि इसके बियॉन्ड कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकती है, अपना पोजेशन शो नहीं कर सकती है। आपको पता ही होगा साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब वहाँ पर वो एरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर ही दूसरी कंट्री आ जाती है। तो यूजुअली उनके बीच में डिस्प्यूट रहता है कि वो एरिया किसके अंदर आता है। इस मामले में थोड़ा सा इंडिया अच्छी लोकेशन पे है कि उसके इमीडिएट आसपास इतने कोई नेशन नहीं आते। श्रीलंका इज़ देयर, बट फिर भी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि श्रीलंका के जो फिशरमैन्स होते हैं वो यूजुअली हमारे टेरिटरी में आकर फिशिंग करने लगते हैं, इंडिया के वहाँ चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इस तरीके के क्या हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज classification of resources on the basis of status of development, like how developed they are. First one is what, potential. Potential में क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके बच्चे में, जो PTM में पेरेंट्स आते हैं, आपके बच्चे में पोटेंशियल तो है बट वो यूज़ नहीं कर रहा, तो व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो पाए तो जाते हैं, लाइक तुम्हारे पास दिमाग है ना, बट आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो वैसे ही रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, दीज आर फाउंड इन रीजन्स बट हैव नॉट बीन येट यूटिलाइज्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल है राजस्थान और गुजरात वाला एरिया, वहाँ पर आपको सोलर एनर्जी, सोलर आपको क्या होगा, आपको सनलाइट्स मिलेंगे, बट अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है उसको क्या नहीं कर पाई है, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई है। तो क्या पोटेंशियल है, ठीक है, बट उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड जिसको आप ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं, उसकी क्वालिटी, उसका क्वांटिटी और उसका यूटिलाइजेशन आपको सब कुछ पता है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड वंस, तो दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज दैट मीन्स व्हाट, जिसके पास काबिलियत तो है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, बट अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम उससे उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो क्या लिख रहा है, हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट दे डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट। फॉर एग्जाम्पल देखो, पानी इतना सारा है, सबको पता है, ठीक है। अब उस पानी में आपको सबको पता होगा, आपको दो वो किस किस से मिलता है आपका, व्हाट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड वी ऑल नो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिच इन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता होगा जब भी आपका सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसमें इनफैक्ट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, और हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस पानी से उसको क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर स्टॉक। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, रिजर्व। रिजर्व जो है इट इज काइंड ऑफ स्टॉक ओनली, तो इट इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व वाले क्या होते हैं, वो कहते हैं ना आपने बचा के रखा हुआ है। रिजर्व दैट मीन्स आप जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी आप उससे उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट आपने उसको क्या करके रखा हुआ है, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको क्या करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो रिवर वाटर है, हम सबको पता है हम उसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, डैम्स में कन्वर्ट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एज वी ऑल नो हमने जो रिवर्स का कैपेसिटी है उस फुल कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया, दैट मीन्स वी हैव केप्ट इट इन अ रिजर्व। सो दीज आर रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ इस पूरे टॉपिक में बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक स्पेसिफिकली आपसे पूछ लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप इसको एक्सप्लेन करिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बताइए, ओनरशिप के बेसिस पे बताइए, स्टेटस के बेसिस पे बताइए, या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही क्लासीफाई करिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू।